Hello dear students, I am M.K. Roy. Today we will be discussing here the topic forces between multiple charges. As I have discussed Coulomb's law for 2-point charges, in that Coulomb's law, it was restricted to 2-point charges at rest, and now we have to discuss here what will happen if there are large number of charges all around in a space, and we have to find out a force on any one charge due to number of charges around it. Here Coulomb's law is not valid, because Coulomb's law, we know, it is a mutual interaction force and it is valid for 2-point charges, and 2-point charges must be at rest. So what will happen if we have multiple charges? How can we find out the force on a single charge due to all other charges around this charge under consideration, right? So we will see here a special principle that is called principle of superposition. So this is called principle of superposition. Principle of superposition. In class we will discuss here the interaction forces, number of forces we will include on a single charge due to multiple charges all around it. So it will be again discussed with the help of principle of superposition, because we are dealing with the vectors. Let us consider here a single charge, that is Q, and this is called, suppose Q1, where Q1 charge is there, right? And I want to find out the force on this charge due to 2 charges around it. Suppose one charge is here, this is called Q2 charge, this is point charge, and this is the separation between these 2 charges. So Coulomb's law यहीं तक वैलिड था कि इन 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस जो रेस्ट पर है, इनके बीच का फोर्स Coulomb's फोर्स के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Coulomb's electrostatic force. Now we have another charge here, suppose, and this is suppose Q3. This is also the point charge, and we have to find out forces on this very charge due to these 2 charges. And we can take similarly infinite number of charges, and we have to find out the force on this charge due to multiple charges all around it. अभी मैं 2 चार्ज को कंसीडर कर रहा हूं. Okay, so if this is the charge, this is Q1, then this is the separation between these 2 charges. Suppose I am writing here 1, 2. This is the separation between these 2 charges. ये just separation है, यहां से यहां तक, magnitude. Similarly, I am writing this separation as R13. I am not writing here vector. This is the separation, distance between these two, this charge to this charge. Next thing, I am taking here the unit vector directed from 2 to 1 as R12 cap, as I have discussed in vector form. Similarly, I am assigning here R13 cap, unit vector directed from 3 to 1. Why I am taking this these unit vectors? Because we are going to deal with the forces, interaction forces between this charge and this charge, and again this charge and this charge, right? So हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, और किसी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? यूनिट वेक्टर. सो आई एम यूजिंग हियर यूनिट वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम और डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, दैट इज R12 वेक्टर. इसे R21 वेक्टर भी लिखा जा सकता है. दीज आर द कन्वेंशंस. मैं यह सुविधा के लिए लिख रहा हूं, क्यों वो देखते हैं. 2 to 1, this is the positive charge. Suppose this is also the positive charge Q1. Then force between these 2 charges will be repulsive of repulsive nature. So this will be directed along this direction. If these 2 charges are of the same sign, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिया जा सकता है. If it is positive, it is negative, there will be attraction force. Now one thing to be considered here, if this is positive charge and this is also the positive charge, there will be repulsion between these 2 charges. This charge will repel this charge. This is the line joining the centers of the charges. This charge will repel this charge. Suppose this is Q1, this is Q2, and if there is repulsion, this charge will repel this charge outside this charge.
So repulsive force will be outside of this charge. Suppose this is positive, this is negative charge, then this charge will attract this charge like this. हम किसी को बुलाते हैं ना, कोई पर्सन वहां खड़ा हो और कैसे बुलाते हैं, यानी अगर अट्रैक्शन का फोर्स हो तो ये चार्ज उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो दिस साइन विल बी इनसाइड, यानी इन बिटवीन दीज टू चार्जेस. ये ध्यान रखना यहां पर, ठीक है ना. इफ दिस इज पॉजिटिव, दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज. रिपेल करेगा तो किधर करेगा, इस चार्ज से बाहर से एरो मार्क लगाएंगे. सपोज ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, किधर लगेगा, इस चार्ज से बाहर की ओर रिपल्सिव फोर्स लगेगा. नाउ अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्जेस. सपोज दिस चार्जेस आर ऑफ अनलाइक साइन, then this charge will attract this charge like this charge will attract this charge like this. So attraction का फोर्स कहां लगेगा, दोनों चार्ज के बिटवीन लगेगा. ठीक है, ये ध्यान रखना है. और रिपल्सिव कहां लगेगा, जिस चार्ज को रिपेल कर रहा है उस चार्ज से बाहर. अगर ये इसे रिपेल करता है इससे बाहर, अगर ये इसे रिपेल करता है इससे बाहर, like that. This Q2 and Q1 are of the same sign, so this is repelling this one with a force. This force is denoted by force on first charge due to the second charge. This is a vector quantity. Similarly, this charge is repelling this one. Again, these two are of the same sign. So this is repelling this one with a force again along this direction. Line joining center जो होगा ना, उसी के along में होगा. यहां से अपने मन से टेढ़ा नहीं कर देना है. So this is suppose force on the first charge due to the third charge, like this. Now there are two vectors. F12 vector along this direction, F13 vector along this direction. There will be net force because these two vectors are along the different directions. तो दोनों का एक नेट होगा, और नेट निकालने के लिए अब हमारे पास कंपलसरी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का. ओके, बिकॉज these two charges are aligned at an angle of this one, so the net force will be like this, and this will be the net force on this charge due to these two charges. So we have to find out what is this F net force, and here we have to use the parallelogram law of vector addition after assigning this angle. Okay, तो अभी मैं एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पैरेललोग्राम लॉ को नहीं लगाना चाहता हूं. अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि what is principle of superposition. If these are the forces, I am taking here only two charges. ऐसा infinite number of charge हो सकता है, सभी का फोर्स का दिशा इस पर अलग अलग होगा. And these all forces will be vector. Now how to assemble these all forces, that is called net force. So how to find out the net force on this charge due to these all point charges all around it. For this one, principle of superposition will be there. Now अब ये फोर्स जो नेट फोर्स आया उसे निकालने के लिए क्या स्टेटमेंट होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट the net force on a charge due to multiple charges all around it is the vector sum of the individual forces on that charge. और कंडीशन क्या है, if one charge is taken at a time. एक बार में सिर्फ एक चार्ज को कंसीडर करना है, दूसरे को कंसीडर नहीं करना है. सपोज इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स है F12, उस समय इस चार्ज को कंसीडरेशन में नहीं लिया गया है, इस फोर्स के ऊपर में इसका कोई प्रभाव भी नहीं होगा. सिमिलरली व्हेन वी कंसीडरिंग द फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज लाइक दिस F13 वेक्टर, देन वी आर नॉट कंसीडरिंग हियर चार्ज Q2 इन द स्पेस, राइट. सो क्या हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ऑल अराउंड इट is the vector sum of all the individual forces acting on that charge when only one charge is taken into consideration at a time, right. एक बार में सिर्फ एक ही लेना है. Now we can state here that F net vector equals F12 vector plus F13 vector. These two forces. अभी वेक्टर सम नहीं लगा रहा हूं, अभी पैरेललोग्राम नहीं लगा रहा हूं, जस्ट आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लाइक दिस. इफ वी हैव infinite number of charges, we can write here F12 vector, F13 vector plus F14 vector, 15 vector, F1n vector. One fix है,
क्योंकि 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा, किसके द्वारा? 3 के द्वारा, किसके द्वारा? 4 के द्वारा, किसके द्वारा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज जो होगा उसके द्वारा. So 1 will remain fixed. So this is for 2 charges now. F net equals this one. Now how to express this in another form? We can write here F net equals, write this one, 1 by 4 pi epsilon naught F12 charge 1 charge 2 whole divided by, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है R12 square Coulomb's law in scalar form. In which direction? Direction I have taken R12 vector. So R12 vector, that is unit vector, from this to this direction ये लिया गया है. इसे कोई भी साइन लिया जा सकता है. या सुविधा क्या लिया गया? सुविधा के अनुसार से. अब देखो ये 1 2 है, ये 1 2 है, ये 1 2 है, फोर्स 1 2 है, सारा में 1 2 है, 1 2 1 2 1. If I will take here 1 3, there will be 1 3 1 3 1 3. So ये कन्वीनियंट के लिए लिया गया है, ऐसा नहीं कोई जरूरी नहीं है. आप यहां पर इस वेक्टर को 2 1 कैप भी लिख सकते हो, राइट. फिर वो आपको समझना होगा, क्योंकि कंसीडर आप कर रहे हो कि 1 3 वेक्टर है तो 3 1 अगर यहां आ रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप उसको मान रहे हो कि दैट फोर्स विल बी फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन और दिस टू दिस डायरेक्शन एंड सो ऑन. ओके. नाउ सेकंड, सिमिलरली 1 by 4 pi epsilon naught, and this will be again q1 and this is q3 whole divided by r13 square, किधर की ओर? r13 कैप की ओर, r13 कैप की ओर, इधर से इधर. नाउ टेक दिस वन कॉमन. अब देखो कॉमन क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught q1 कॉमन है. सो यू कैन राइट हियर f net equals 1 upon 4 pi epsilon naught टाइम्स q1. इसे q1 को यहीं ले लो. So this is q1 and in bracket क्या हो सकता है? q2 divided by r12 square r12 cap plus q3 divided by r13 square r13 cap and so on. ठीक. अब इसे मैं assemble कर देता हूं for nth charge. Similarly for n charges we have F net equals F12 vector, 1 के ऊपर 2 का, 1 के ऊपर 3 का, 1 3 वेक्टर, 1 4 वेक्टर अप टू F1n वेक्टर. मींस फोर्स 2 से लेकर n तक चला गया. कहने का मतलब 1 फिक्स है, ये चार्ज फिक्स है, यहां चार्ज है 3 4, यहां चार्ज है 5 Q5, इसी तरह से चार्ज है Qn. सभी के द्वारा फोर्स, सभी के द्वारा फोर्स, ये सभी के द्वारा फोर्स लग गया इसके ऊपर. और सारे फोर्स का जो सम होगा वो कौन देगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देगा. ठीक है. न्यूमेरिकल जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो आई एम राइटिंग हियर द नोटेशन फॉर्म F net equals Q1 फिक्स है सभी में, क्योंकि 1 2 1 3 1 4 सब में आएगा. 4 pi epsilon naught फिक्स है. सो आई हैव रिटन हियर Q1 डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught इन कॉमन, राइट. आई हैव यूज्ड हियर समेशन साइन छोटे रूप में लिखने के लिए. I equals 2 to n, I एक वेरिएबल लिया गया. QI मीन्स 2 से लेकर n तक जाएगा, यानी 1 2 1 3 1 4 1 n. So I've written here I equals 2 to n. समेशन किसका सम हो रहा है? ये सम किसका हो रहा है? वेक्टर QI डिवाइडेड बाय R1I का स्क्वायर, 1 2 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 1 4 स्क्वायर 1 n स्क्वायर. किधर की ओर? R कैप जो यूज हो रहा था 1 I का कैप, 1 2 कैप 1 3 कैप 1 n कैप. So this is very important notation, right? This is the final notation. Let us have so many examples of the principle of superposition. Okay, let's see one by one. Practice करना है. This is a square and this is the point of intersection of two diagonals of a square. All sides are equal. I have taken all the figures, geometrical figures, as symmetric figures. Symmetric क्यों? This distance A to O is equal to distance BO equals DO equals CO in every figure, right? I have not written here A B C D in all, but I have written A B C D
Similarly, AB, CD and so on. All distances will be equal from the vertex. ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से ये डिस्टेंस इक्वल होगा सभी में. सिमेट्रिक फिगर हो गया. Again, I have taken here equilateral triangle, and this equilateral triangle, this side equal, and from here to here, I have taken this as a centroid of this triangle, and centroid is the point of intersection of medians of a triangle. So obviously, from here to here, this distance, if I write here O, then this AO must be equal to BO equals CO. So all figures are symmetric figures. ठीक है, सिमेट्रिसिटी का यूज करूंगा मैं, और कहीं भी न्यूमेरिकली कुछ फाइंड नहीं करूंगा. और आप देखोगे बहुत आसानी से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल के लेके यूज करके और सारा न्यूमेरिकल बनता है. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. फर्स्ट वन, आई हैव टेकन हियर ऑल पॉजिटिव चार्जेस at corners of a square. Suppose this charge at point O is also positive. Okay, now we shall be taking here any two charges at a time, and there will be calculation of the force of attraction or repulsion. Let's see here, these two charges are positive charges, so this charge will repel this charge with a force, and the direction of force will be outside of this force, outside of this point. बताया था हमने, रिपल्सिव फोर्स, ये इसे रिपेल कर रहा है, इससे बाहर जाएगा. ये अगर इसे रिपेल करेगा, इससे बाहर जाएगा. सो दिस इज अलोंग AO. दिस इज सपोज F1 वेक्टर. क्या लिया हमने? F1 वेक्टर लिया हमने. F1 वेक्टर लिया हमने. सिमिलरली फ्रॉम B to O, दिस इज अलोंग दिस डायरेक्शन, सपोज F2 वेक्टर. Similarly, D to O, all are positive, F3 vector, and this C to O, this is called F4 vector. आप किसी को 1 2 3 4 लिखो. आई एम राइटिंग हियर दिस F1, ये जो रिपेल किया F2, ये जो रिपेल किया F3, और ये जो रिपेल किया F4, सब में लिया गया कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है. ये इसे रिपेल कर रहा है इधर की ओर, ये इसे रिपेल कर रहा है इधर की ओर, ये इसे रिपेल कर रहा है इधर की ओर, सभी का डायरेक्शन ले लिया गया. नाउ सी हियर, सिंस ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल, AO equals BO equals CO equals DO, symmetric figure is there. All forces are equal because all charges at the corners are of equal magnitude. So what can we find? All forces are equal. Principle of superposition क्या बोलता है? What is F net at this point? This is nothing but F1, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, and all two forces are oppositely directed. See here, F1 is opposite to F3, but in magnitude F1 equals F3. So अगर F1 और F3 बराबर है और दिशा ऑपोजिट है, तो we can write here F1 plus F2 minus F3. Similarly we can write here minus F4 with respect to this F2. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूं, और साइन अगर लगाना है तो साइन लगा सकते हैं, बिकॉज ऑल आर, एक पेयर जो है उसमें दोनों चार्ज ऑपोजिट दिशा में है. F1 के F3 ऑपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो F1 और F3 कट जाता है. सिमिलरली F2 इधर है, F4 उधर है, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का, ये कट जाता है. सो व्हाट इज लेफ्ट? बिग जीरो. हेंस ध्यान देंगे, फर्स्ट में है, अभी आगे और करना है. सो इन दिस केस ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव. डायगोनल पर सेम चार्ज था, डायगोनल पर सेम चार्ज था, डायगोनल के ऑपोजिट कॉर्नर पर सेम चार्ज था. F net कितना आया? 0. लेट्स सी हियर अगेन, हियर इज पॉजिटिव चार्ज. I have taken plus minus plus minus. Let's see what happens. This plus will repel this one like this. Suppose this is F1 vector. This charge will attract this charge because this is negative itself. यहाँ पॉजिटिव है, इसे अट्रैक्ट करेगा, बताया गया, अंदर की ओर जाएगा. सपोज दिस इज F2 वेक्टर, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, ये F3 वेक्टर, ये अट्रैक्ट करेगा F4 वेक्टर. गॉट द पॉइंट? ये चार्ज प्लस है, इसको प्लस को यहां पॉजिटिव चार्ज लिया गया है. सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को रिपेल किया इधर की ओर, यानी इसके द्वारा. यहां मैं लिख देता हूं सुविधा के लिए, दिस इज 1 एंड आई हैव टेकन दिस एज 2, आई हैव टेकन दिस एज 3 एंड दिस एज 4th चार्ज. तो देखो 1 ने रिपेल किया F1 वेक्टर, इससे बाहर. सिमिलरली इस 2 ने अट्रैक्ट किया F2 अंदर, यानी इस चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया.
सिमिलरली F3 ने अगेन रिपेल किया, क्योंकि प्लस है, प्लस को रिपेल किया, F3 यहां लिखा हुआ है। इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, F4 लिखा हुआ है। अगेन सिचुएशन इज सेम, F net equals 0 बिकॉज ऑल फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। इन दिस फिगर ऑल्सो F net equals 0 ऑन दिस चार्ज, जो यहां पर लिया गया है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर लिया गया है। सी दिस वन, what happens? This charge repel, suppose again 1, this is second, this is third, this is fourth, 1, this is F1, this is 2, this is positive, this is repelling, this is F2, this is negative, this will attract like this, so this is F3 vector because this is third position, this is fourth, this is attractive, so this is F4th. Now in this situation net force will not be equal to 0 because these two forces are along the same direction, these two are in the same direction, there will be resultant like this. Using parallelogram law of vector addition, this will be F net in this case, and this F net not equal to 0. In this case you have to take F2 vector plus F4 vector, that will be this one. Suppose इसको मैंने ले लिया F vector और इसे ले लिया F dash vector, है ना, इसे F dash vector ले लिया हमने, इन दोनों के सम को F dash ले लिया, इन दोनों के सम को F वेक्टर ले लिया। अब ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तो नहीं होगा, क्यों? रिजल्टेंट तो यहां आएगा। ये एंगल पता होना चाहिए और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। F net इक्वल्स रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर प्लस 2F F डैश इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसके दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा। ठीक है, उन न्यूमेरिकल में हम लोग बात करेंगे। सो हियर इन दिस सिचुएशन F not इक्वल टू 0। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट केस that will be in NCERT example 1.6 also. I am giving you the hint, you have to solve the question 1.6 and 1.7. See here, this is an equilateral triangle and I have kept positive charges on the corners or vertices of triangle. Again this is symmetric figure because if I take here point O, then AO equals BO equals CO because O is what? Centroid. सेंट्रॉइड हमने लिया है, यानी मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया है। ऑब्वियसली AO इक्वल्स BO इक्वल्स CO, सो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक फिगर क्योंकि साइड सब इक्वल है, चार्जेस इक्वल रखा हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड का। नाउ सी इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यहां एक पॉजिटिव चार्ज छोटा सा ले लिया गया, इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स इधर, सपोज दिस इज FA है ना, लिख दो FA वेक्टर, 1 2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सिमिलरली दिस चार्ज C, इसका फोर्स इधर FC वेक्टर, सिमिलरली ये B का फोर्स इधर लाइक FB वेक्टर। नाउ ये तो झूला झूल के बंदर वाला केस हो गया। लेमिस थ्योरम यूज किया करते थे हम लोग क्लास 11 में। क्या हमारे पास 3 वेक्टर आया, इस पॉइंट पर एक वेक्टर आया FC वेक्टर, एक वेक्टर आया FB वेक्टर और एक वेक्टर आया FA वेक्टर। You will see very interesting it is that FA vector plus FB vector plus FC vector again comes out to be 0. This will be magic one. If you solve example 1.6 of NCERT, this is exactly the figure and there is given equal charges at the corners of equilateral triangle and you have to find out sum of all the forces at point O when point O is the centroid of the triangle. Right? So you will solve this one. करना क्या है, ये बहुत आसानी से हमने बोल दिया। आप देखोगे कि ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा इधर आएगा। You have to find out this angle और ये एंगल 120 डिग्री यहां होगा। अब बढ़िया से निकालोगे इसको, ये जो आएगा ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आएगा। सपोज दिस इज F वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और आप देखोगे ये जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का वही इसके बराबर होगा, यानी ये F वेक्टर के बराबर होगा। जो FA वेक्टर होगा उसके बराबर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा और चूंकि दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिटली डायरेक्टेड, व्हाट शुड बी द सम? दैट विल बी इक्वल टू 0, सो इन दिस केस आल्सो इक्वल्स 0। सो नो नीड टू सॉल्व हियर न्यूमेरिकली, ओनली सी द सिमेट्रिसिटी ऑफ द फिगर और फोर्सेस को ध्यान से लगाइए। रिपल्सन है तो चार्ज से बाहर, अट्रैक्शन है दोनों के बीच में लगाइए, ध्यान से इसको चूज कीजिए एंड अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फाइंड द नेट फोर्स, नथिंग एल्स। राइट, दिस इज
NCERT example number 1.7. What is this one? This is an equilateral triangle. This is minus Q, this is plus Q, and this is plus Q charge. Okay? In this question, कोई पॉइंट यहाँ सेंट्रॉइड नहीं है. अब कहां पर फोर्स निकालना है? You have to find the force due to any charge over here, over here, over here. That is, you have to find out the force on this charge due to these two charges. You have to find out the force on this charge due to these two charges. You have to find out the force on this charge due to these two charges. कॉर्नर पर फोर्स निकालना है. See here, मैं डायरेक्ट डायग्राम दे देता हूं, वेक्टर डायग्राम, एंड यू हैव टू सॉल्व. सपोज दिस इज प्लस. ये प्लस के ऊपर अगर फोर्स निकालना है तो किसके द्वारा? इसके द्वारा, इसके द्वारा. ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा. ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. आप 1 2 3 लगा लेना, काम खत्म. ये दोनों फोर्स अगर इस पर आ गया, इनका एक पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से रिजल्ट हो गया यहां. ठीक. सिमिलरली अगर इस चार्ज पर फोर्स निकालना इन दोनों का, तो ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर करेगा. ये पॉजिटिव क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा. इसका मतलब इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. सिमिलरली अगर इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना इन दोनों का, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा. अगेन देखो नीचे में, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां? यहां, लाइक दिस. अब हमारे पास टोटल मिला के 3 फोर्स हो गए. इसे मैं लेता हूं F1, इसे लेता हूं F2, और सपोज इसे लेता हूं F3 वेक्टर. हमारे पास 3 फोर्स कैसे आ गए? हमारे पास 3 फोर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं. इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है. अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊं तो बड़ा खूबसूरत एक सिमेट्रिक फिगर मिलेगा, और आप देखोगे कि बिल्कुल इसी के लाइन पर वो होगा जो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना. पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का एक एग्जांपल था, कैसे चिड़िया उड़ती है ऊपर, है ना, बर्ड फ्लाई कैसे करती है, उसका एक एग्जांपल था. नेचर में कहां पर होता है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, और वो जब पंख से थ्रस्ट लगाती है नीचे की ओर, तो अब थ्रस्ट मिलता है ऊपर. ये एग्जांपल मिला था. ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर होगा. सो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा. While solving the numerical problem, example 1.7, you shall find out that this F1 vector magnitude will be equal to suppose this F dash vector. इसको F dash vector बोल दिया हमने. इन दोनों का रिजल्टेंट F dash आएगा, वो F dash, और ये जो F1 निकलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट वो इस तरह से होगा. So we shall have forces like this. This is F1 vector. इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा इस F dash के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, और दोनों ऑपोजिट दिशा में होगा. हमारे पास 2 ही फोर्स आया, दोनों का रिजल्टेंट मिला के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव फाउंड हियर दैट इन ऑल दीज फिगर्स नेट फोर्स इक्वल्स 0. अब एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लो फाइनल. देखो ट्रिक उसको बनाओ. जब भी डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पर सेम चार्ज हुआ, सेम साइन का हुआ, सेंट्रॉइड पर, इस सेंटर पर फोर्स हमेशा 0 निकलेगा. सी हियर, प्लस प्लस 0 निकला था, प्लस प्लस यहां 0 निकला था. यहां देखो प्लस प्लस, माइनस माइनस, इन दोनों पर कॉर्नर पर भी सेम चार्ज है, माइनस माइनस, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, अगेन 0. यहां नहीं है, यहां डायगोनल पर प्लस है, यहां माइनस है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन और साइन ऑपोजिट है, 0 नहीं आया. एफ नेट नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0. सो 1 नंबर का क्वेश्चन चुटकी में होगा. कैसे कि आप जैसे देखो स्क्वायर है, जैसे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर सेम नेचर का चार्ज हुआ तो उसके सेंट्रॉइड पर फोर्स 0 ही होगा. स्क्वायर के डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पर सेम साइन का चार्ज हुआ, डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पर सेम साइन हुआ, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हुआ, सेम साइन हुआ, नेट फोर्स सेंट्रॉइड सेंटर पर कितना आएगा? 0 आएगा. सेंटर मतलब यहां सेंटर किसको ले रहे हैं? डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट. ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है सारा, उस पॉइंट पर फोर्स 0 आएगा. अब यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, प्लस है, इसका फोर्स इधर आ रहा है, माइनस होता तो वो फोर्स अंदर होता, अट्रैक्ट करता, बट हमेशा वो अपोजिट होगा एंड नेट फोर्स विल बिकम 0. ओके, सो थैंक यू.